اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم بزرگوں اور دوستوں، اسلامی رشتے سے لگنے والی میری ماں اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آئیے ہم اور آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ناموں کی فضیلت جانتے ہیں۔ جو نام یا ممیتو ہے، جو کوئی شخص اس کو 1000 بار پڑھتا ہے، اول اور آخر درود شریف یعنی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ چھوٹا درود شریف ہے، پڑھتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو ہر پریشانی، مصیبت، دکھ، تکلیف، آفت سے اس کو نجات عطا فرماتا ہے، اور اس کو شیطانی حرکت سے نجات عطا فرماتا ہے، اور اس کو زمینی اور آسمانی جتنی بھی بلائیں ہیں اس کو دور عطا فرماتا ہے، اور اس کی روحانیات کو بیدار کرتا ہے، اور اس کو قبر کے عذاب سے بچاتا ہے، اور اس کو روحانیات کو بیدار کرتا ہے، اور اس کو الہام عطا فرماتا ہے، اور اس کو کسب قبور کا علم عطا فرماتا ہے، اور اس سے اللہ تبارک و تعالیٰ راضی ہو جاتا ہے، اور جس سے اللہ تبارک و تعالیٰ راضی ہو جاتا ہے اس کو سجدے کی توفیق دیتا ہے، تلاوت کی توفیق دیتا ہے، قرأت کرنے کی توفیق دیتا ہے، تہجد پڑھنے کی توفیق دیتا ہے، پھر ذکر کرنے کی توفیق دیتا ہے، اور یتیم، مسکین، غریب، فقراء، مساکین کی مدد کرنے کی توفیق دیتا ہے، اور دلوں سے دنیاوی محبت کو ہٹا دیتا ہے، اور آخری یعنی آخرت کی محبت کو اس کے دلوں میں بھر دیتا ہے، اور اس کے ہر انگ میں، سر میں، آنکھوں میں، زبان پر، چہرے پر، کانوں میں، داڑھی میں، بال میں، سینے میں، کندھے پر، پیٹ میں، اس کو نفس کے اندر، اس کے پیروں کے اندر، اس کے گھٹنوں کے اندر، اس کے کلائی کے اندر، اس کو سینہ کے اندر نور بھر دیتا ہے، اور اس کے آگے پیچھے، اوپر نیچے، دائیں بائیں نور بھر دیتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے راضی ہو جاتا ہے، اور جس سے راضی ہو جاتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو ہر عیب سے پاک عطا فرما دیتا ہے۔ جب وہ ہر عیب سے پاک ہو جاتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو وہ جو مانگتا ہے، جو چاہتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو عطا فرماتا ہے، اور اس کو علم غیب عطا فرماتا ہے، وہ علم جو پوشیدہ ہوتی ہے، جو کتابوں میں نہیں ملتی، وہ علم عطا فرماتا ہے۔ جیسے کسی کے سینے کے اندر کیا بات چلتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ وہ علم بتا دیتا ہے، اور کب اس کی موت ہوگی اللہ تبارک و تعالیٰ وہ علم بتا دیتا ہے، اور وہ مر کر کے پھر اس دنیا میں آئے گا یا نہیں آئے گا وہ اس کو بتا دیتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی ہر پریشانی اور حاجت، اور اس کی اولادوں کو دلوں میں، اور اس کی وائف کے، پتنی کے، بیوی کے، اہلیہ کے دلوں میں محبت ڈال دیتا ہے، اس کے ماں باپ کے دلوں میں محبت ڈال دیتا ہے، اس کے خیش و اقارب، ریلیشن یعنی رشتہ دار کے دلوں میں محبت ڈال دیتا ہے، اور اس کے جتنے بھی چاہنے والے ہوتے ہیں اس کے دلوں میں محبت ڈال دیتا ہے، اور جتنے بھی جاندار، جمادات، نباتات، مخلوقات، جتنے بھی حیوانات ہے ان سب کے دلوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ محبت ڈال دیتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ جب نفرت کرتا ہے تو اس کے دلوں میں جو آخرت کی محبت ہوتا ہے تو دنیا بھر دیتا ہے، اور اس کے دماغوں کے اندر
आखिरत की नहीं दुनिया की मोहब्बत डाल देता है और उसके दिमागों को मोहर लगा देता है और उसको सीनों में मोहर लगा देता है और उससे नाराज़ हो जाता है और उसकी जो दीन की मोहब्बत होती है वो छीन लेता है और उसको दुनिया में उलझा देता है, कामों में उलझा देता है और उसको मलविस अता फरमा देता है और हर आफत और मुसीबत और उलझनों में और बीमारियों में अल्लाह तबारक व ताला उसको डाल देता है। और जब अल्लाह तबारक व ताला उससे राज़ी हो जाता है तो उसको हर ऐब से पाक अता फरमा देता है और जब वो नाराज़ होता है तो उसको राज़ी करने के लिए किसी न किसी औलिया कराम को या किसी न किसी मुत्तकी परहेजगार को या किसी न किसी आमिल को या किसी न किसी इमाम जो परहेजगार है या कोई उसके चाहने वाले हैं या सारे लोगों की दुआएं उस पर आती है, तब अल्लाह तबारक व ताला माफ़ अता फरमाता है या कोई औलिया कराम उसके बदले में यानी उसके एवज़ में दुआ करता है तो अल्लाह तबारक व ताला उसको माफ़ अता फरमा देता है। और अल्लाह तबारक व ताला जब उसको माफ़ अता फरमा देता है तो उससे राज़ी हो जाता है। जब राज़ी हो जाता है तो अल्लाह तबारक व ताला उसे बेहद बेइंतहा सारे दुनिया में जितने भी शय अल्लाह ताला ने पैदा किए हैं और ज़मीन और आसमान में जितने भी स्पेस हैं, जगह है, इस जगहों में जितने भी खाली स्पेस है, इन सब को नेकियों से पूर कर देता है और जितने भी जमादात, नबातात, हैवानात, मखलूक़ात है, इन सब के काउंटिंग के बदले उन सब के दिलों में मोहब्बत डाल देता है और नेकियां भर देता है और सातों आसमान सातों ज़मीन के अंदर जितने भी स्पेस खाली है उस सब को नेकियों से पूर कर देता है और फरिश्तों के दरमियान यानी फरिश्तों के एक गुट बनाई जाती है, एक समाज बनाई जाती है, इकट्ठा किया जाता है और उसमें अल्लाह तबारक व ताला इरशाद फरमाता है, फरिश्तों तुम लोग गवाह रहना, मैंने इसकी मग़फ़िरत कर दी। फरिश्ते कहते हैं आमीन। और अल्लाह तबारक व ताला जब किसी की मग़फ़िरत कर देता है तो फिर उसको गुनाहों के दलदल में नहीं छोड़ता है और उसको अपना लेता है। अगर जब कोई किसी से नफ़रत करता है तो अल्लाह तबारक व ताला उससे भी नफ़रत करता है। यानी कोई चाहने वाला, कोई परहेजगार, कोई दीनदार या कोई बुज़ुर्ग की अगर कोई दिल दुखाता है तो गोया कि अल्लाह तबारक व ताला की दिल दुखाता है। अगर कोई बुज़ुर्ग यानी कोई परहेजगार या कोई मुत्तकी या कोई या कोई औलिया कराम से मोहब्बत करता है तो गोया कि वो अल्लाह तबारक व ताला से मोहब्बत करता है और अल्लाह तबारक व ताला हर ऐब से पाक है। अल्लाह तबारक व ताला जब किसी से मोहब्बत करता है तो उसका आँख बन जाता है, उसका चेहरा बन जाता है और उसकी ज़ुबान बन जाता है और उसका कान बन जाता है और उसका हाथ बन जाता है और उसका पाँव बन जाता है। यही अल्लाह तबारक व ताला की मोहब्बत की निशानी है। और जब उसका हाथ बन जाएगा तो उस हाथ से वो गलत नहीं काम कर सकता है। जब वो ज़ुबान बन जाएगा तो उस ज़ुबान से झूठ, चुगलखोरी, गीबत, हसद, रियाकारी, जनाकारी, तकब्बुर और घमंड कभी नहीं कर सकता है। झूठ नहीं बोल सकता है, वादा खिलाफ़ी नहीं कर सकता है, किसी का दिल नहीं दुखा सकता है, किसी को गाली नहीं दे सकता है, अपने माँ बाप की नाकदरी नहीं कर सकता है, अपने उस्ताद की नाकदरी नहीं कर सकता है, अपनी सास ससुर की नाकदरी नहीं कर सकता है, अपनी बीवी का दिल नहीं दुखा सकता है, अपने बच्चों का दिल नहीं दुखा सकता है, अपनी बेटी का दिल नहीं दुखा सकता है, अपने चाहने वालों का दिल नहीं दुखा सकता है। अल्लाह तबारक व ताला जब ज़ुबान से पाक कर देता है तो जब आँख बनता है तो उस आँखों से किसी गैर महरम लड़की को नहीं देख सकता है और किसी गलत जगह वो नहीं देख सकता है, गलत जगह निगाह नहीं जा सकती है। हाँ, जब जाएगी तो पूर्ण यानी खूब
देख ले एक बार और दूसरी बार ना देखे, यह अल्लाह तबारक व तआला का हुक्म होता है। और कान बन जाता है तो उस कानों से कभी वो गलत यानी गाना, टीवी वगैरह कभी नहीं सुन सकता है, और नहीं वो गाली गलौज और गीबत चुगलखोरी उस कानों से नहीं सुन सकता है। यानी जितनी भी बुराइयां हैं उस कानों से नहीं सुन सकता है। और जब उसका पाँव बन जाता है तो कभी गलत जगह नहीं जाएगा, यानी नाच जहाँ होगा वहाँ नहीं जाएगा, जहाँ ऑर्केस्ट्रा होगा वहाँ नहीं जाएगा, जहाँ बुत परस्ती होगी वहाँ जाएगा, मगर वहाँ पर रोक टोक लगाएगा। और ये पैर वहीं पर लेकर जाएगा जहाँ पर अल्लाह तबारक व तआला की मोहब्बत होती है, यानी मस्जिद में लेकर के जाएगा, यानी तन्हाई में लेकर के जाएगा कि सुकून से अल्लाह तबारक व तआला की, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की, एक गॉड की, एक ईश्वर की, एक प्रभु की, एक ला इलाहा इल्लल्लाह की इबादत कर सके, उसकी पूजा कर सके, उसकी परस्तिश कर सके, उसकी इबादत कर सके, उसको परे कर सके, उसकी पाठ कर सके। अल्लाह तबारक व तआला यही सिखाता है।